Hello everyone, welcome to the daily Hindu analysis that we've been doing since 25th of June. And I'm really sorry for the past 3 days. I had to attend a conference due to which I couldn't take your sessions. But nevertheless, I'll make sure that in the future sessions that I take, I'm covering all the important things that happened in the past 3 days, right? And as we know, session becomes extremely important for the people who are appearing for this examination called as CLAT. Now, how does this add value to your CLAT examination? See, the passages that you would encounter in the CR and the English sections would be coming from your newspapers. Almost 60% of your passages would come from newspaper. Then it helps you directly in your GK portion, right? I don't have to explain it why newspaper becomes important for the GK section, because most of the passages that are coming are from your current affairs. Static के भी कुछ questions आते हैं, but mostly it is dominated by current affairs. Now, when we talk about the legal portion, you would find at least 10 marks of questions which would be using your legal current affair, which would be primarily covered through your newspaper. How does this session helps the CUET candidates? In your paper 3, which is your general aptitude test, GK is given directly. Also, once you start understanding these articles, you would start reading them also. You would find a lot of words which you won't be knowing, right? This would help enhance your vocabulary, which is directly mentioned in your paper 1, that is your language paper, right? Now people who are appearing for IPMAT, the integrated program in management, for that matter any sort of BBA entrance, or let's say JIPMAT, in a lot of exams, interviews have a key role to play. Let's say if you want to appear for IPM Indore, the 35% weightage to your selection would be given to your personal interviews, and these interviews shall revolve around you and the developments around you. Now, how do you understand the developments around you? You start studying the news paper. I hope I have told you sufficiently how newspaper sessions are gonna benefit you in all of these examinations, right? Chalo, not wasting any time, let us understand the first article. As 50% tariff begins, US Treasury Secretary says end of day we will come together. चलो तो ये समझने की कोशिश करते हैं. Also, what Donald Trump said is, called Modi and Pak said stop war or will make your head spin with tariff. चलो इसको जोड़ के पढ़ते हैं. चलो understand. 22nd of April, पहलगाम happens, है ना? पहलगाम इंसिडेंट होगा. 9th of May, India retaliates. India retaliates by the name Operation Sindoor. Chalo. Now, suddenly, after 3-4 days of war, Donald Trump comes up and says that he negotiated the war and asked both Pakistan and India to go for ceasefire. अब यहाँ पे ceasefire समझो, ceasefire मतलब war stop कर दो. चलो, तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्लेम किया, इसके कुछ दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पे टैरिफ्स लगाना शुरू किए. नाउ व्हाट आर टैरिफ्स? टैरिफ्स का मतलब होता है टैक्स. अपनी लोकल इंडस्ट्री को सेव करने के लिए बाहर से आने वाले गुड्स और सर्विस पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाना. मतलब लेट्स से आप इंडिया में यू आर एबल टू मैन्युफैक्चर दिस पेन फॉर लेट्स से ₹20, बट विद बेटर टेक्नोलॉजी एंड बेटर इंजीनियर्स and better manufacturing capacity, let's say US is able to manufacture at ₹10 only. Now US would try to sell this and dump it into the Indian market, and the Indian consumer would also want to buy this for ₹10. Why would I spend extra when I'm getting the same thing at ₹10? Now to save this industry, ये जो 20 रुपए का बना रहा है, क्योंकि यहाँ एम्प्लॉयमेंट तो इंडियंस को ही मिला हुआ है, इस वाले पेन में एम्प्लॉयमेंट यूएस के सिटीजन को मिला हुआ है, प्रॉफिट यूएस में जा रहा है, इधर प्रॉफिट इंडिया में आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट इंडिया में आ रहा है. तो हमें अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को कभी कभी प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है, because for all of these reasons. Now when US will try to sell us something, we will impose heavy taxes on this product so that this product also becomes for rupees let's say 20 या 21. अभी इंडियन प्रोडक्ट बिके, इसी को बोलते हैं टैरिफ. जब आप एक कंट्री से लेट्स से, अच्छा एक चीज और है, टैरिफ्स आर ऑफ 2 टाइप्स, टैरिफ बैरियर्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स. इसमें तो सीधे टैक्स लगाओगे, और इसमें यू विल फाइंड डिफरेंट रीजंस कि आप, मैं आपका प्रोडक्ट नहीं ले रहा बिकॉज आप चाइल्ड लेबर से ये काम कराते हो, मैं आपका प्रोडक्ट नहीं ले रहा क्योंकि आपके वहाँ पे लेट्स से तो ये प्लांटेशन में काम कर रहे हैं,
उस कम्युनिटी पे बहुत सारा एट्रॉसिटी होता है। जैसे एक बार यूएस ने नाइकी के प्रोडक्ट्स लेने से मना कर दिया था, बिकॉज दे सेड नाइकी जो कॉटन यूज़ कर रहा था वो यूगुर मुस्लिम्स बना रहे थे, एंड यूगुर मुस्लिम्स आर चाइनीज़, और जो मेनलैंड चाइना है वो इन पे बहुत सारी एट्रॉसिटीज़ करता है। तो ये हो गए नॉन टैरिफ बैरियर्स। बेसिकली व्यापार होने से रोकना है अपने डोमेस्टिक लोगों को बचाने के लिए। अब इंडिया और यूएस में, यूएस का ट्रेड, इंडिया का ट्रेड सरप्लस था, विच मेंट इंडिया ज़्यादा बेचता था रादर देन बाइंग, सो इंडिया को फ़ायदा हो रहा था। दोनों देखते हुए हम पे टैरिफ लगाए, इनिशियली 25% के, और फिर कुछ प्रोडक्ट्स पे लगा दिए जाके 50% के, विच मेंट कि इंडिया से अगर 100 जा रहे हैं यूएस, तो अराउंड 55% प्रोडक्ट्स पे टैक्सेस बढ़ जाएंगे, जिस वजह से यूएस में उसका प्राइस बढ़ जाएगा, और जब प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग वहाँ पे कम बाय करेंगे, और जब कम बाय करोगे तो इंडिया में मैन्युफैक्चर कम होगा, तो इंडिया में जॉब लॉस होगा, राइट, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगी। तो इसके इतने लंबे इम्पैक्ट थे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक स्टेटमेंट पास कर दिया कि भाई जब ये ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था ना, तो मैंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों को फ़ोन लगा के बोला था कि वॉर रोक दो, नहीं तो मैं तुम पे इतने टैरिफ लगाऊंगा कि तुम्हारा सर चकरा जाएगा, विच ही सेड स्पिन ऑफ, तो तुम्हारा सर चकरा जाएगा, इतने टैरिफ लगाऊंगा, जल्दी से वॉर रोक दो। ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ऑल्सो, वी हैव कवर्ड दिस, डोनाल्ड ट्रंप को अभी नोबेल भी चाहिए, नोबेल पीस प्राइज़। और नोबेल पीस प्राइज़ कब मिलता है? जब आप ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करते हो, आप वॉर रुकवाते हो, कॉन्फ्लिक्ट्स कम कराते हो। इसीलिए आपने देखा होगा कंबोडिया के प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप को फॉर नोबेल पीस प्राइज। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। अगर मोदी जी एक बार स्टेटमेंट देंगे, दिस विल इंक्रीज हिज चांसेस ऑफ विनिंग द नोबेल पीस प्राइज, राइट। तो सारी चीज़ें कनेक्टेड है। अब इसी को देखते हुए जो यूएस के लेट्स से मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हैं, सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला है कि जल्दी से इंडिया एंड यूएस विल फाइंड आउट अ सोल्यूशन, बिकॉज हमारे रिलेशनशिप बहुत पुराने और स्ट्रॉन्ग है, एंड वी विल ट्राई टू फिगर आउट कि इसमें कुछ चेंज हो सकते हैं या नहीं। फिलहाल आज की डेट से इंडिया पे 50% टैरिफ इम्पोज हो गया है, अभी तो 25% हुआ है, कुछ प्रोडक्ट्स पे 17 सितंबर से 50% इम्पोज हो जाएगा। मतलब आज की डेट में अगर कोई इंडियन प्रोडक्ट, अगर वो इन 55% प्रोडक्ट्स में आता है, यूएस में सेल होगा या फिर इम्पोर्ट होगा, तो बढ़े हुए टैरिफ मतलब 25% टैरिफ के साथ होगा। सो लेट्स से कोई चीज़ अगर $1 की आ रही थी यूएस में, तो आपको हो जाएगी $1.25। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट, वाई दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, so we have covered this, you can read it. Welcome to Water Day of Flat, right? And today is 28th of August. So the first news is about judicial recusal. Chalo, let us understand this. देखो, इंडिया में हमारा पर्पस है हम जस्टिस सर्व करें, है ना। हम क्या सर्व करें? जस्टिस सर्व करें। अब जस्टिस को सर्व करने के लिए उतना नॉलेज होना चाहिए। अब जो जजेस होते हैं, दीज जजेस आर प्राइमरली लॉयर्स, तो इनको जुडिशियल प्रोसीडिंग्स तो समझ में आती हैं, जुडिशियल प्रोसेसेस तो समझ में आते हैं, बट कई बार बहुत सारी टेक्निकल फील्ड्स में उस तरीके से जस्टिस को डिलीवर नहीं कर पाते जिस तरीके से जस्टिस डिलीवर होना चाहिए। अब यहाँ पे रोल आता है ट्राइब्यूनल्स का, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 323A में मेंशन है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद इंट्रोड्यूस हुए हैं, दैट इज वाई कैप्स लॉक ए। तो ट्राइब्यूनल्स का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इसमें वी विल हैव सम जुडिशियल मेंबर्स, हम कुछ तो जजेस रखेंगे, एंड वी विल ऑल्सो हैव सम एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, कोई रिटायर्ड IAS, रिटायर्ड IPS, सम सॉर्ट ऑफ ऑफिसर। अब इनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, इनको जुडिशियल एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे जस्टिस थोड़ा फास्टर डिलीवर होगा। और इस टाइप की जस्टिस की नीड कहाँ पे होगी? जहाँ पे एक टाइप का नीचे होगा। मान लीजिए एनवायरमेंट लॉ का मैटर देखना है, मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मैटर देखना है, मान लीजिए सर्विस लॉ का मैटर देखना है, और फॉर दैट मैटर लेट्स से कंपनी लॉ का मैटर देखना है। अब यहाँ पे वी नीड मोर एक्सपर्टीज, तो यहाँ पे ना इंडिया में वी हैव ट्राइब्यूनल्स फॉर दिस। इसी में कंपनी लॉ के लिए हमने एक ट्राइब्यूनल बना रखा है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। हेंस इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब एक कानून से बनी है। कौन से कानून से बनी है? ये बनी है कंपनीज एक्ट कानून से। और ये एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, क्वाजी मतलब हाफ, और जुडिशियल मतलब जो जस्टिस सर्व करे। तो ये जस्टिस भी सर्व करती है, रूल्स भी बनाती है, रूल्स इंप्लीमेंट भी कराती है, ब्रीच होने पे पेनल्टी भी लगाती है। तो मान लीजिए कोई कंपनी लॉ का मैटर होता है, या कोई इंसॉल्वेंसी का लेट से मैटर होता है। नाउ व्हाट इज इंसॉल्वेंसी? मान लीजिए मैं बैंक से 10 करोड़ रुपए का लोन लेके आता हूँ, और मैं बाद में वो 10 करोड़ रुपए देने से मना कर दूँ, मैं कर दूँ, ये हो गई इंसॉल्वेंसी, हो गई इंसॉल्वेंसी। अगर मैं मना कर रहा हूँ तो क्या बैंक ऑफिशियल्स तुरंत मान जाएंगे मेरे पास पैसे नहीं है? नहीं, उठ जाएंगे। जब कोर्ट बोल देगा कि हाँ भाई मेरे पास 10 करोड़ रुपए नहीं है, आई कैन नॉट पे इट ऑफ, तब मैं कहलाऊंगा बैंकरप्ट। तो देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी। इंसॉल्वेंसी समथिंग विच इज वॉलंटरी, जो आप खुद बोलते हो नहीं है मेरे पास, गाली। एंड व्हाट इज बैंकरप्सी? व्हेन द कोर्ट सेज कि हाँ इसके पास पैसा नहीं है। इसी को इंप्लीमेंट करने के लिए इंडिया में एक लॉ है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ऑफ 2016। अब अगर इंसॉल्वेंसी का मैटर होता है, कोई कंपनी अपने पैसे देने से मना कर दे या ना दे पाए,
तो फिर उस कंपनी का लिक्विडेशन होता है ना। वो कंपनी आईवीसी में जाती है, फिर वहाँ पे एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए जाते हैं, फिर उस प्रॉपर्टी को बेसिकली सेल करते हैं। लीगल प्रोसीजर डोंट अंडरस्टैंड। तो अब होता क्या है, कंपनी लॉ के जो मैटर्स हैं वो जाते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में। अगर मान लीजिए मैं इसके डिसीजन से खुश नहीं हूँ, तो मैं जाता हूँ नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल। अब मैं इससे भी खुश नहीं हूँ, तो आई कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, बट ओनली व्हेन द क्वेश्चन इज अबाउट लॉ, नॉट फैक्ट। बहुत बड़ी बात है, इसको प्लीज ध्यान से सुने। मतलब कंपनी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने कोई फैसला सुनाया, मुझे नाराजगी है, आई कैन अपील। अगर मैं यहाँ से भी नाराज हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट में तो यार सिर्फ 34 जजेस बैठते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को तो दुनिया भर के काम देखने हैं, तो सारे मैटर्स तो यहाँ नहीं जाने। लेकिन हाँ, अगर इस मैटर से तुम खुश नहीं हो, इसके डिसीजन से खुश नहीं हो, और इस बात से खुश नहीं हो कि कोई लॉ पे दिक्कत थी, जो लॉ बना था वही बेकार था, लॉ में ही लूप होल था, तो यू कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। अगर फैक्चुअली नाराज हो इससे, तो यू कैन नॉट अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज अंडरस्टैंड सुप्रीम कोर्ट में देर आर ओनली 34 जजेस, और सुप्रीम कोर्ट तो हर तरीके के केस लेता है ना, इवन डॉग्स को पकड़ के अंदर डालो। समझ में आ रहा है? तो अंडरस्टैंड, अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है इसकी अपील। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, फिर फैक्ट पे आप नाराज हो तो कुछ नहीं कर सकते, इसका फिर डिसीजन फाइनल एंड बेंडिंग हो जाएगा। मैं आपको पढ़ाने आया था जुडिशियल रेक्यूजल, अगर आपको याद हो तो। टॉपिक था जुडिशियल रेक्यूजल, याद करिए। अब जुडिशियल रेक्यूजल क्या होता है? अभी इंडिया में कल एक जज ने एक केस, उनके पास इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी का केस आया था, मतलब वो एनसीएलटी में बैठते थे, मतलब वो एक ट्राइब्यूनल के पार्ट थे। समझ में आ रहा है स्टोरी? अब उनके पास केस आया और उन्होंने बोला कि भाई इस केस में मेरा बायसनेस हो सकता है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, इसीलिए मैं ये केस नहीं लूंगा। मतलब दिस इज़ प्योरली अ वॉलेंटरी एक्सरसाइज, ये कोई कानून में नहीं लिखा है कि जज साहब केस से हट सकते हैं, ये कोई कानून नहीं कहता। इट इज़ ओनली वॉलेंटरी, जज साहब चाहेंगे तो वो केस से हट सकते हैं, साइटिंग दीज रीजंस कि भाई मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। इसका एक एग्जाम्पल समझो, जो सलमान खान का केस था राजस्थान हाईकोर्ट में, जो ब्लैकबक केस था, इस ब्लैकबक केस में जो जज थे उन्होंने जुडिशियल रिक्यूजल ले लिया था, क्या बोल के कि उनका बेटा बॉलीवुड में उस टाइम पे एक स्ट्रगलिंग एक्टर था, एंड सलमान खान हैड अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस इन बॉलीवुड बैक देन। तो उन्होंने ये रीज़न साइड करके अपने आप को उस केस से अलग कर लिया था। इसी तरीके से, अभी हमें जज का नाम याद नहीं रखना, आई विल टेल यू द नेम, बट ऐसे ही इंसॉल्वेंसी का एक मामला था, एनसीएलटी के जज थे, उनको जुडिशियल रिक्यूजल उन्होंने एक केस से ले लिया कि भाई मैं इस केस को नहीं देख सकता, मेरा क्योंकि कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट हो सकता है। हमारा काम था जुडिशियल रिक्यूजल, वो हमने सीखा। हमारा काम था ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं, हमने सीखा। हमारा काम था एनसीएलटी समझना, हमने सीख लिया। हमारा काम था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट समझना, हमने सीख लिया। हमारा काम था कंपनी लॉ के मैटर्स में अपील कैसे जाती है, वो हमने सीख लिया। हमें नहीं सीखना था, बट स्टिल यू कैन also read it from your newspaper, so that this helps in your vocabulary. चलो नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, टाइफून काजिकी। तो द न्यूज़ इज अबाउट टाइफून काजिकी, इसको भी थोड़ा सा डिकोड करेंगे। टाइफून काजिकी, पहले याद रखो ये आया कहाँ पे, वियतनाम में। अभी मैं बताता हूँ टाइफून क्या है। और वियतनाम की कैपिटल याद रखेंगे, हनोई है। वियतनाम आसियान का पार्ट है। आसियान क्या है? एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। मतलब अगर ये हिंदुस्तान है, तो ये जो देश हैं ये आसियान है, और इसमें 10 कंट्रीज आते हैं, राइट फ्रॉम थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ब्रूनेई, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, ये सारे 10 कंट्रीज इसमें आते हैं, इसको बोलते हैं आसियान। तो इसमें से एक कंट्री है वियतनाम। वियतनाम में एक टाइफून आया, टाइफून कजीकी। सवाल आएगा कि टाइफून कजीकी होता क्या है, तो इस चीज़ को समझो। टाइफून इज़ नथिंग बट साइक्लोन। जिस चीज़ को आप साइक्लोन बोलते हो हिंदी में चक्रवात, उस चीज़ को वर्ल्ड के कुछ रीजन्स में टाइफून बोला जाता है। मतलब बेसिकली ये टाइफून ना होके एक साइक्लोन है, बस दुनिया के कुछ हिस्सों में उसको साइक्लोन ना बोल के टाइफून बोल देते हैं। साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन एक ऐसा समय होता है, आपने देखा होगा, जब पानी ऐसे ऐसे वर्ल्डिंग करके घूमता है, जब सी सरफेस टेम्परेचर हाई होगा, कोरियोलिस फोर्स हाई होगी, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लो प्रेशर बेल्ट होगी। अब हम ज्योग्राफी पढ़ने तो नहीं बैठेंगे, आप ऐसे समझ लो चक्रवात आ गया है ना, फिर सुनामी वुनामी आ जाती है। तो टाइफून अब साइक्लोन है यहाँ पे, हम इंडिया में इसी फिनोमिना को बोलते हैं साइक्लोन। इसी फिनोमिना को ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में बोला जाता है, इस वाले रीजन में बोला जाता है विली 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 विली। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड। फिर ये वाला जो रीजन है, इधर बोला जाता है साइक्लोन, राइट। फिर फिर जो ये वाला रीजन है, मतलब ये वाला रीजन यहाँ आ जाएगा ना, अर्थ गोल है, तो ये वाला मैप इधर भी बनेगा, समथिंग लाइक दिस। ये वाला जो रीजन है यहाँ पे बोलते हैं टाइफून। अब वियतनाम देखो कहाँ पे, वियतनाम कहीं यहाँ पे है, तो टाइफून कजीकी, टाइफून कजीकी। इसके अलावा टाइफून, विली विली, साइक्लोन, और एक और बचा, दैट इज योर
हरिकेन। तो अटलांटिक वाले रीजन में, दिस अटलांटिक रीजन मैंने अच्छे से तो नहीं बनाया बट एक एस बनता है, तो अटलांटिक ओशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एस शेप्ड ओशन, एस शेप्ड ओशन, है ना। फिर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर यहाँ पे मिलेगी, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये पढ़ाया हुआ है मैंने, आई टॉट दिस इन प्रीवियस लेक्चर्स, प्लीज वॉच इट। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर यू विल फाइंड इन पैसिफिक ओशन। द डीपेस्ट पॉइंट इन द अर्थ विच इज कॉल्ड एज मरीना ट्रेंच, द डीपेस्ट पॉइंट इन द अर्थ विच इज कॉल्ड एज मरीना ट्रेंच, ये भी आपको कहाँ मिलेगा, पैसिफिक ओशन में। तो ये फिलहाल ये जो अटलांटिक ओशन वाला रीजन है, यहाँ पे अगर साइक्लोन आता है तो उसको बोलते हैं हरिकेन, को बोलते हैं हरिकेन। प्लीज रिमेंबर, हरिकेन इज समथिंग यू शुड रिमेंबर। अटलांटिक वाला रीजन, इंडियन ओशन वाले रीजन में इट इज कॉल्ड एज साइक्लोन। फिर ऑस्ट्रेलियन रीजन में दिस इज कॉल्ड एज ओशियानिक, ओशियानिया, और न्यूजीलैंड वाले रीजन में इट इज कॉल्ड एज विली विली। एंड फिर ये पैसिफिक, इधर अमेरिका के इस वाले हिस्से में, पैसिफिक वाले हिस्से में इट इज कॉल्ड एज यार टाइफून। चलो, तो टाइफून का जी आया, टाइफून साइक्लोन से रिलेटेड हमें जितना याद रखना है वो हमने रख दिया है। इस पे आ जाओ, सुपर गरुड़ा शील्ड 2025, सुपर गरुड़ शील्ड 2025, ये क्या है ये, चलो लेट अस अंडरस्टैंड। व्हाट इज दिस, अंडरस्टैंड। तो लेट अस से दिस इज अ वर्ल्ड मैप, राइट। अभी क्या होता है, नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंटरनेशनल रिलेशंस, कंट्रीज़ के आपस में रिलेशंस होते हैं, है ना। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिप्लोमेसी, जिससे हमें ये रिलेशंस बना के रखने पड़ते हैं, है ना। तो पीपल हैव, डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट ग्रुपिंग्स, डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट ग्रुपिंग्स। आपके अगर इंटरेस्ट मिल गए तो आपने अपना ग्रुप बना लिया। अभी अपना इंटरेस्ट पिच करते हैं वाया डिफरेंट ग्रुप्स। अब इंटरेस्ट कैन बी इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो, इसीलिए आप देखो ब्रिक्स बना लिया, वर्ल्ड बैंक बना दिया, IMF बना दिया, न्यू डेवलपमेंट बैंक बना दिया। अब जो इंटरेस्ट है वो जियो पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, कि भाई मैं सुरक्षित रहना चाहिए, है ना, मेरा एरिया सुरक्षित रहना चाहिए, जियो पॉलिटिकल मतलब जोग्राफी से रिलेटेड पॉलिटिक्स, मेरा एरिया सुरक्षित रहना चाहिए, इसमें भी तो मेरा इंटरेस्ट हो सकता है कुछ लोगों के साथ, है ना। फिर अब ये इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए मुझे अपना डिफेंस स्ट्रांग चाहिए, यस और नो, यस। एंड वी शुड ऑलवेज बी वॉर रेडी, वॉर रेडी रहना चाहिए। कीप ऑन टेस्टिंग वेपन्स, यू शुड कीप ऑन टेस्टिंग योर वेपन्स, यू शुड कीप ऑन टेस्टिंग योर इंटरऑपरेबिलिटी, आप साथ में काम कर सकते हो या नहीं। तो इसी के लिए जो फ्रेंड कंट्रीज होते हैं या फिर जहाँ पे उनका इंटरेस्ट मिल रहा होता है, वो बहुत सारी एक्सरसाइजेस करते हैं, और उन एक्सरसाइजेस को हम कुछ कुछ नाम देते रहते हैं। अब यहाँ पे, तो दिस रीजन ऑफ द वर्ल्ड, दिस रीजन ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे बैठा है चाइना, और अगर इसको इधर उठा के देखोगे, इसको इधर उठा के देखोगे, मान लो ऐसे ऐसे कुछ होगा, है ना, ये वाली चीज़ इधर आ जाएगी, गोल है, यहाँ पे यू हैव यूएस, यहाँ पे यू हैव चाइना। तो यूएस को हमेशा ये डर लगता है कि चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है कहाँ पे, इन द इंडो पैसिफिक रीजन। अब ये इंडियन ओशन है, तो इंडो, ये पूरा पैसिफिक ओशन है, ये पूरा पैसिफिक ओशन है, ये अभी बताया था मैंने तुमको, ये बताया था पूरा पैसिफिक ओशन है। तो इंडो, इंडो, ये इंडो, ये पैसिफिक, तो जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है वहाँ पे यूएस को थ्रेट लगता है, किससे, चाइना से। तो यूएस यहाँ पे अपने कुछ कुछ ग्रुपिंग्स बना लेता है, सो दैट इट कैन काउंटर द इंक्रीजिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस इन द इंडो पैसिफिक। आज इंडो पैसिफिक समझ में आया होगा। चलो, तो अब हो क्या रहा है, इसी 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 लार्जर पिक्चर के लिए एक छोटा सा काम किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें करी जा रही हैं। अगर आप जानते हो, देयर इज अ ग्रुप कॉल्ड एज क्वाड, जिसमें जापान, जिसमें जापान, इसमें यू हैव जापान, यू हैव यूएस, यू हैव ऑस्ट्रेलिया, यू हैव इंडिया। तो ये चारों देखो मिल गए, और ये चारों एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, इसीलिए इस ग्रुप को बोलते हैं क्वाड। दिस इज ऑल्सो टू काउंटर द इंक्रीजिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस इन द इंडो पैसिफिक। तो एक छोटी सी चीज़ और कर दी, यूएस ने, यहाँ पे एक कंट्री मिलेगा तुमको बाय द नेम फिलीपाइंस, यहाँ पे वियतनाम के पास में। तो यूएस ने वियतनाम के साथ, सॉरी, यूएस ने इंडोनेशिया के साथ, यहाँ देखो चाइना बैठा है, यहाँ यूएस बैठा है, यहाँ इंडोनेशिया बैठा है। तो यूएस और इंडोनेशिया ने इसको इसको कॉम्बैट करने के लिए, चाइना को कॉम्बैट करने के लिए यूएस
और यहाँ बैठा है आपका इंडोनेशिया। इन्होंने साल 2009 से एक एक्सरसाइज शुरू करी विच इज कॉल्ड एज सुपर सुपर ग्रैंड शील्ड एक्सरसाइज। अब 2009 तक से तो बोथ ऑफ दीज कंट्रीज वर पार्टिसिपेटिंग, बट सिंस 2022 अराउंड 10 मोर कंट्रीज हैव जॉइंड इट। तो सारी कंट्रीज जो चाइनीज इन्फ्लुएंस को रोकना चाहती हैं साउथ चाइना सी में, वो इसमें ऐड हो रही हैं। सवाल आना चाहिए कि इज इंडिया पार्ट ऑफ इट? तो देखिए, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस एक्सरसाइज, नॉट अ मेंबर बट एन ऑब्जर्वर। इसका मतलब क्या होता है? मतलब आपके पास कोई वोटिंग राइट नहीं है, आप कुछ बोल नहीं सकते हो, लेकिन आप मीटिंग में बैठ सकते हो, यू कैन जस्ट ऑब्जर्व इट। तो वी आर नॉट अ फुल फ्लेजेड मेंबर ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्योंकि हमें चाइना को भी थोड़ा लेके चलना है ना यार। अभी देखो मोदी जी पूरा फॉरेन पॉलिसी फेल हो गया, तो हम देखो वापस चाइना के पास दौड़ के गए। चलो, सुपर गरुड़ शील्ड। फिर आ जाओ प्रोजेक्ट आरवानी, बहुत छोटी सी न्यूज़ है यार। जो हमारे रोड पे टोल प्लाजा वसूलते हैं ना लोग, तो वो बहुत अच्छे इकोनॉमिक कंडीशन से तो नहीं होते हैं, एवरीवन नोज। तो उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन के अंडर काम करता है, अंडर नितिन गडकरी जी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड द प्रोजेक्ट आरोहन टू सपोर्ट एजुकेशन चिल्ड्रन ऑफ टोल प्लाजा एम्प्लॉय। तो जो टोल प्लाजा पे एम्प्लॉय होते हैं उनके बच्चों के लिए लाइक दिस NHAI हैज लॉन्च्ड अ गुड इनिशिएटिव वेर इन दे वुड प्रोवाइड क्वालिटेटिव, वेर इन देखो, जब भी कोई चीज़ की बात हो कि तुम्हें वो चीज़ कैसी चाहिए, यहाँ पे एजुकेशन की जगह अगर मैं हेल्थ लिख दूँ, तो दोनों ही चीज़ें, या फिर फॉर दैट मैटर एनीथिंग एल्स, तो ये दोनों ही चीज़ें हमेशा कैसी होनी चाहिए? अफोर्डेबल होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। होगी तभी तो अवेल करोगे, अवेल ही नहीं कर पाओगे अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होगी। पेन इंडिया में होगा ही नहीं, मेरे पास कितने भी पैसे हों तो बात ही खत्म, अवेलेबल ही नहीं है। आप कितना भी अफोर्ड कर लो, अब अफोर्डेबल भी होना चाहिए, अवेलेबल भी होना चाहिए, और एक्सेसिबल भी होना चाहिए। इसके साथ में क्वालिटेटिव भी होनी चाहिए। तो NHAI ने फिलहाल कागज़ों में बोला है कि जो टोल प्लाजा पे लोग काम करते हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनके बच्चों की एजुकेशन की जिम्मेदारी भी लेंगे और इन 4 पैरामीटर्स पे काम करेंगे अंडर मिशन आरोहन, which is under Ministry of, which is by National Highway Authority of India, working under Ministry of Road Transport, and the minister is Nitin Gadkari. So for that, I guess this is the last news for today. I hope you enjoyed the session, and in case you are preparing for CLAT, CUT or IPMAT, right, all of these exams become crucial if you want to enter into careers other than medicine and engineering. If you are looking for a full-fledged course, you should give us a call on the number which is given in the description, and which is 8808888415. Also, you can install our app to get this PDF. And for any other information, yes, you can call us, and probably I'll see you tomorrow. Thank you for the session. And if you're liking it, please subscribe to our channel and share this video and the channel per se to as many people as you can. For now, thank you so much. See you tomorrow.